Hello and welcome to our discussion on associative models of demand forecasting. So up till this point we have talked about qualitative methods of demand forecasting, then in quantitative methods we have talked about time series models, and today we will talk about associative model. In past we have talked about it that associative models are method of least squares, regression equation that we generally call. So today we will take a simple example where we will be trying to find values or forecast. These are associative models, and in associative we are taking method of least squares. So this is the method that we are talking today of. We'll take an example, a very simple, very basic example. Let us say we have sales of cars and petrol consumption. Suppose sales of cars were like this. We have some data and sales of cars have grown like this. And what about petrol consumption? It has grown like this is petrol consumption. Now the question is, it is expected that the car sales will touch 100 this year. Question is, let us put the question over here. Car sales will be around 100. What petrol consumption can we expect? It is expected that car sales will be around 100. So now this time we are using associative model. This time I am not saying the data for past 10 years is this, the data for past 7 years is this, as we were using all these days. In all other cases of demand forecasting, we used same set of data for past 7 periods, and we were trying to forecast data for 8th period. Here what we are doing is, we are not taking time series data, rather we are taking associative data. Associative data is association between sales of cars and consumption of petrol. Obviously there is some kind of relationship between the number of cars that are being sold and the petrol they'll consume. If more cars are sold, obviously more petrol will be consumed. So it is expected that car sales will be around 100. What petrol consumption can we expect? We need to forecast our petrol consumption when sales of cars reach 100. Right now they are 65. This year we expect them to be 100. So what do we expect? Now again, if we remember method of least squares, what is that method of least squares? Y is equal to a plus bx. And in order to find out values of a and b, we solve two simultaneous equations of sigma y is equal to na plus b sigma x. Sigma of xy is equal to a sigma of x plus b sigma of x square. So these are the two equations that we will be solving simultaneously in order to find out values of a and b. These a and b will define the relationship between number of cars sold and the petrol consumed. कितनी कारें बिकने पे कितना पेट्रोल कंज्यूम होगा? यस, ये तो ऐसा लग रहा है कि ज्यादा होता है, बट क्या कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? क्योंकि 10 कार्स पे तो 9 यूनिट्स ऑफ पेट्रोल बिका, फिर 14 पे 17 हो गया, 65 पे वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा चला गया, 105 चला गया. तो यस, कार्स की सेल्स से बढ़ने से पेट्रोल की सेल्स बढ़ रही है, बट कितनी बढ़ेगी
जब हम 100 कार्स का टारगेट अचीव कर लेंगे तो पेट्रोल सेल्स कितनी होंगी? इस रिलेशनशिप को कौन डिफाइन करता है? ये दो कोफिशिएंट्स ए एंड बी, जिनकी की वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है फॉर दिस सेट ऑफ डेटा। अगर ये सेट ऑफ डेटा है तो इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। हमारी पहले भी बात हुई थी कि क्वांटिटेटिव मेथड्स की सबसे अच्छी बात यह है कि उसको आज सॉल्व करें, कल सॉल्व करें, मैं सॉल्व करूं, आप सॉल्व करें, कोई और सॉल्व करे, वैल्यूज सेम आएंगी, फोरकास्ट सेम आएंगी। क्वालिटेटिव में फोरकास्ट कैन बी डिफरेंट। मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है कि अगले साल कितने पेन्स बिकेंगे, आपका आइडिया अलग हो सकता है। मेरा ओपिनियन, मेरी डिमांड, मेरी फोरकास्टिंग अलग हो सकती है, कितने मोबाइल्स बिकेंगे, आपकी फोरकास्ट अलग हो सकती है क्वालिटेटिव में। बट क्वांटिटेटिव में फॉर दिस सेट ऑफ रिलेशनशिप, दिस सेट ऑफ डेटा, ये ए और बी फिक्स्ड रहने वाले हैं, इसलिए वी कॉल देम कांस्टेंट्स, वी आल्सो कॉल देम कोफिशिएंट्स। रिग्रेशन कोफिशिएंट कहते हैं बी को हम। हियर विल नॉट कॉल इट रिग्रेशन कोफिशिएंट क्योंकि हम बेसिकली रिग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमारे लिए तो ये दो कांस्टेंट्स हैं जो कि इस रिलेशनशिप को डिफाइन कर देंगे। और उनकी वैल्यू कहां से आती है? इन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से। हाउ डू वी सॉल्व दीज इक्वेशन साइमल्टेनियसली? लेट अस गेट ऑन विद इट। सिग्मा वाई एंड सिग्मा एक्स चाहिएगा, तो लेट अस कॉल इट x एंड लेट अस कॉल इट y। तो यहां जो समेशन आएगा वो हो जाएगा आपका सिग्मा x, और इधर जो समेशन आएगा वो बन जाएगा सिग्मा y। देन यू विल बी नीडिंग एक्स वाई एक्स तो आ ही गया, नो इश्यूज। एक्स वाई चाहिएगा और एक्स स्क्वायर चाहिएगा, एक्स वाई चाहिएगा, एक्स स्क्वायर चाहिएगा। ये सब वैल्यूज हमारे को पता कर लेनी है। तो इनके अगर समेशंस मिल जाएंगे तो हमारे को फाइनल आंसर मिल जाएगा। सो व्हाट अबाउट एक्स वाई? एक्स वाई क्या होने वाला है? इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? दिस विल बी 90। आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। अगर रिग्रेशन याद आ रहा है, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स याद आ रहा है, तो यू कैन सॉल्व इट फॉर योरसेल्व्स। और हम वापस से इसको, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वापस से आगे कनेक्ट होते हैं और देखते हैं कि आपकी वैल्यूज और ये वैल्यूज टैली होती हैं यानी। सो यू कैन पॉज दिस वीडियो, यू कैन सॉल्व these equations by yourselves। मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, then will tell you कि अपना सेम आ रहा है रिजल्ट या नहीं। 14 multiplied by 17, 238। 18 multiplied by 21, 378। 45 multiplied by 30, 1350। 105 multiplied by 65, 6825, giving me a total of 8881। What will this total be? This total would be, we will add over here, 95, 10, 20, 30, 42, 137। 137 ही आ रहा है ना? 120, 128, 132, 137। This would be 17 and 9, 26 plus 21 plus 45 plus 105, making it 197. So now I have sigma x, sigma y, sigma xy, sigma x, sigma y, sigma xy. Now I need x square also. X square would be 100, 196, 324, 900, and when we try to add them, 196 plus 100 plus 324 plus 900 plus 4225, making it 5745। तो अब जब हमने ये सब वैल्यूज निकाल ली हैं तो इनको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करके सॉल्व कर सकते हैं हम। तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे सॉल्व करने से। First of all, let us substitute these. I need sigma y. Sigma y कितना आ गया हमारे पास? 197 is equal to NA. NA मतलब 1, 2, 3, 4, 5 pairs.
तो 5 पेयर्स आर बीइंग कंपेयर्ड, A प्लस B सिग्मा X 137 B। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का सब्सटीट्यूशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड को जब सब्सटीट्यूट करते हैं, आई नीड सिग्मा XY, वो कितना है 8881 इज इक्वल टू A सिग्मा X, दैट इज 137A प्लस B sigma X square. So I have 5745B। तो ये हमारे सब्सटीट्यूशंस हो गए। अब इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का आप सबका अपना अपना तरीका हो सकता है। हम एक बेसिक अप्रोच लेते हैं जिसको कि अगर साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं भी आती है तो वो भी इसको फिर भी सॉल्व कर सकें। वो हमारा रास्ता क्या होता है, एक बड़ा सिंपल सा थंब रूल बना रखा है हमने। वो थंब रूल क्या है कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको सेकंड इक्वेशन का जो ए का कोफिशिएंट है, सेकंड इक्वेशन में ए का कोफिशिएंट कितना है 137 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और जो सेकंड इक्वेशन है उसमें फर्स्ट में जो ए का कोफिशिएंट है, फर्स्ट में ए का कोफिशिएंट कितना है 5, इनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अल्टीमेटली हम देखेंगे कि नतीजा क्या होगा कि ए का कोफिशिएंट दोनों के अंदर सेम हो जाएगा। तो व्हाट डू वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई देम, लेट अस चेक। फर्स्ट पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 137 से, तो व्हाट डू वी गेट 197 मल्टीप्लाइड बाय 137 मेकिंग इट 26989 और फिर यहां पे आपके पास आ जाएगा 137 मल्टीप्लाइड बाय 5 मेकिंग इट 685A प्लस 137 का स्क्वायर हो जाएगा 18769B। और सेकंड वाली को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कंप्लीट सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई एक वेरिएबल ऐसा हो जाए जो इक्वल हो जाए, तो जब हम सब्ट्रैक्शन करें तो वो कैंसिल आउट हो जाए। तो सेकंड को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिल रहा है हमारे को 8881 मल्टीप्लाइड बाय 5 गिविंग मी 44405 is equal to 685A plus 5745 multiplied by 5 giving me 28725B। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है, इफ वी हैव अ लुक एट दीज टू इक्वेशंस, हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला था, हमने यहां से टेबल से वैल्यूज निकाल के सब्सटीट्यूशन किया और उस सब्सटीट्यूशन के बाद हमारे पास ये क्या हो गया, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद ए के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो गए। नाउ लेट मी सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्शन करते टाइम हम क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है उसके सारे साइंस चेंज कर देते हैं। लेट मी गो अहेड एंड सब्ट्रैक्ट देम। प्लस 685A माइनस 685A कैंसल्ड। यहां अगर हम देखें तो व्हाट डू वी गेट 44405 माइनस 26989 I get माइनस 17416 और ये तो कैंसिल आउट हो गया। इधर क्या बन जाएगा आपके लिए 28725 माइनस 18769 गिविंग मी माइनस 9956 B। तो अगर ये नेगेटिव्स हैं दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके लिए B आ जाएगा 17416 अपॉन 9956। तो हम क्या देखते हैं 17416 डिवाइडेड बाय 9956 गिविंग मी 1.74। B कितना आ गया 1.79 है, तो let us make it 1.75. So B comes out as 1.75. अब जब B आ गया है तो B की जो ये वैल्यू है इसको लेकर के हम आइदर इन फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इधर जब B की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास A अकेला वेरिएबल रह जाएगा, तो उसका हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। कर दें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, क्या हो जाएगा ये 197 इज इक्वल टू 5A प्लस 137 मल्टीप्लाइड बाय 1.75। B की जगह क्या आ रहा है 1.75। What do we get? 197 is equal to 5A plus
137 multiplied by 1.75, 239.75, 239.75. अब इसको अगर इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 197 माइनस 239.75 इज इक्वल टू 5a. ये इधर आ गया है तो माइनस 197 मेकिंग इट 42.75 माइनस 42.75 is equal to 5a, or rather a is equal to minus 42.75 upon 5, giving me a as divided by 5. We get 8.55. 8.55. This is value of a. Fine. So now that I have value of a, क्या मैं यहां पे ऐसा कर सकता हूं, इक्वेशन लिख सकता हूं ये फाइनली? चलिए ऊपर ही लिखते हैं इस इक्वेशन को. When I have values of a and b, क्या बन जाएगा ये जो इक्वेशन डिराइव करना चाह रहे थे, y is equal to a, that is, sorry, this is minus, y is equal to minus 8.55, y is equal to a plus b 1.75x. तो ये बनी हमारी वो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स की रिग्रेशन इक्वेशन, जो कि डिफाइन कर रही है कि इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्या है. सेल्स ऑफ कार्स एंड पेट्रोल कंजम्पशन, अगर ये डेटा सेट है, ये वैल्यूज हैं, तो इनके लिए जो डिफाइनिंग रिलेशनशिप है वो ये रही. अब क्वेश्चन आता है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट कार सेल्स विल बी अराउंड 100. व्हाट पेट्रोल कंजम्पशन कैन बी एक्सपेक्टेड? What petrol consumption can be expected? तो जब कार सेल्स 100 हो जाएंगे, इसका मतलब हमारे से पूछा क्या गया है कि कार सेल्स 10 थी, 14, 18, 30, 65 ऐसे बढ़ती 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 ये क्या होगी, कभी ना कभी 100 हो जाएंगी. जब ये 100 हो जाती हैं तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड पेट्रोल कंजम्पशन? एक्सपेक्टेड पेट्रोल कंजम्पशन चाहिए तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है. हम यहां पे y is equal to minus 8.55 plus 1.75 x, ये इक्वेशन है. अब x की वैल्यू जब 100 हो जाएगी तब y कितना आएगा ये हम चेक कर सकते हैं. y is equal to minus 8.55 plus 1.75, x की जगह क्या रख दें 100, क्योंकि गिवन है ऑलरेडी, मल्टीप्लाइड बाय 100, y becomes 8.55 negative plus 175, giving me a y of कितना हो जाएगा 166.45. 166.45. So when sales of cars touches 100, petrol consumption can be expected to be 166.45. This is method of least square. This is associative model. Why is this associative model? Because we are using association between two variables. We are forecasting petrol consumption based on its association with sales of vehicles. यही हमने क्या किया था, पेट्रोल कंजम्पशन को प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर, प्रीवियस मेथड के अंदर हमने टाइम के हिसाब से भी देखा था कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में किस तरह से पेट्रोल कंजम्पशन चेंज हुआ. बट दिस टाइम वी आर टेकिंग एसोसिएशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स. So this is about associative model. So now at this point we have talked about all the quantitative methods that we will be discussing. Next time when we meet, we'll talk about how to find out if there are errors in these. What are the levels of errors? I am forecasting 166.45, but someday definitely car sales will be 100. At that time I will check what is the petrol consumption. Suppose if petrol consumption is only 150, then I'll say that there is an error of 16.45 in my forecast, because petrol consumption is different from my forecast. So for that we'll talk in errors in demand forecasting. For now, this was it about associative model. With this we conclude all our quantitative models. Do subscribe to our Telegram channel.
which was flashing over here, and also the link will be provided in description box. All these questions, all these videos, more practice questions will be provided in the Telegram group. And this is it for today's lecture. Thanks for watching. Bye bye. Take care.